شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو متاثر کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ غلام نبی کمار صاحب، جنہوں نے جموں اور کشمیر میں اردو زبان کی صورتحال، وہاں کے مسائل سے ہم سب لوگوں کو آگاہ کیا۔ آپ جانتے ہیں جموں کشمیر اس ملک کی واحد ریاست ہے جہاں اردو کو پہلی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ تو آپ اسی تناظر میں ان کے مقالے کو دیکھیں اور ان کے مسائل کا تجزیہ کریں۔ یہاں کئی یونیورسٹی سے ریسرچ اسکالرس آئے ہوئے ہیں، دلی یونیورسٹی، جامعہ JNU، مانو، مٹلا یونیورسٹی، اور بھی کئی یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہیں جنہیں میں نہیں جانتا ہوں یونیورسٹی کی ان کی یونیورسٹی کے ساتھ۔ ہمارے پاس ایک اور ریسرچ اسکالر آئے ہیں مانو کیمپس لکھنؤ سے، ان کا نام ہے شاہد حبیب فلاحی، وہ بھی اپنا مقالہ پیش کریں گے اس موضوع پر۔ شاہد حبیب فلاحی، مانو کیمپس لکھنؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اراکین مجلس صدارت اور حاضرین محترم، میرے مقالے کا موضوع میں نے ایک مرکزی موضوع کے ذیلی عنوان کو چنا ہے: اردو کے ڈیجیٹلائز نہ ہونے سے پیدا ہونے والے مسائل۔ اردو کے ڈیجیٹلائز نہ ہونے سے پیدا ہونے والے مسائل۔ زبانوں کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے کہ وہ زمانے کی رفتار کے ساتھ ہم آہنگی بنائے رکھیں، ورنہ وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یونیسکو نے اپنے 2011 کی ایک رپورٹ میں ایسی 2500 زبانوں کو نشانزد کیا ہے جو یا تو مردہ ہو چکی ہیں یا پھر 500 سے کم بولنے والوں کی تعداد کے ساتھ مردہ ہونے کے قریب ہیں۔ ہماری اردو کو ابھی تقریباً 800 سال ہو رہے ہیں۔ اگر اسے مزید 8000 سالوں تک زندہ رکھنا ہے تو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اردو کے عظیم ذخیرے کے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف سنجیدگی سے قدم آگے بڑھایا جائے۔ ڈیجیٹلائزیشن کی رفتار کی سست روی کی وجہ سے ہمارے تعلیمی اداروں میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوشش کی گئی ہے کہ اس مقالے میں ان کو سامنے لایا جائے اور اپنی ناقص سمجھ کے مطابق اس کا حل پیش کیا جائے۔ معروف غیر سرکاری ادارہ پرتھم نے جب اثر کے نام سے اپنی سالانہ تعلیمی رپورٹ 2017 جاری کی تو ایک چونکانے والی حقیقت سامنے آئی۔ 18 سال کے نوجوانوں میں 82% ایسے تھے جو 4G سم استعمال کرتے تھے۔ ان 4G سم استعمال کرنے والے نوجوانوں کا 90% ڈیٹا انٹرٹینمنٹ ویڈیوز دیکھنے میں صرف ہوتا ہے۔ وہیں 8ویں کلاس کے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ درجہ دوم اور سوم کی کتابیں پڑھنے میں نااہل ہیں۔ اس کا ایک سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دنیا تو پسند آ رہی ہے، لیکن فارمل یا روایتی تعلیمی نظام میں اس کی دلچسپی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس چیز کو اثر کی اس نشاندہی سے بھی بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ 14 سال کی عمر کے بچوں کے داخلے کی شرح جہاں 70% ہوتی ہے، وہیں 18 سال کی عمر تک آتے آتے یہ شرح صرف 60% رہ جاتی ہے۔ اس سے آشکارا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا دھیان فارمل تعلیمی نظام سے دھیرے دھیرے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی صرف اتنی ہے کہ ان کے اندر ہمارا تعلیمی نظام دلچسپی برقرار رکھنے میں ناکام ہے۔ تو کیوں نہ اس کی طرف سنجیدگی سے سوچا جائے کہ فارمل یا روایتی تعلیمی مواقع کو پرکشش بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دنیا میں اس طرح کے مواد فراہم کرائے جائیں جس سے ان کے پاس آپشنز زیادہ ہوں اور وہ اپنے موبائل ڈیٹا کا استعمال انٹرٹینمنٹ ویڈیوز دیکھنے کے بجائے اپنی شخصیت کے مجموعی ارتقاء کے لیے استعمال کر سکیں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے کہا تھا، انڈین ایجوکیشن فریم ورک نیڈس ٹو چینج کمپلیٹلی، یعنی انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم کو پوری طرح سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر APJ نے یہ بات اس لیے بھی کہی تھی کہ ہمارا نصاب تخلیقی صلاحیتوں اور ہنرمندیوں کو ابھارنے کی بجائے چیزوں کو رٹ لینے کی طرف زیادہ مرکوز ہے۔ اس کی وجہ سے اس تعلیمی نظام کے فارغین کی بڑی تعداد سماج کے لیے پیداواری نہیں رہ جاتی ہے۔ ایسوچیم کی 2017 کی رپورٹ کہتی ہے کہ ہمارے طلبہ کی 93% تعداد انڈر امپلائمنٹ یا ان امپلائمنٹ کی مار جھیل رہی ہوتی ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایسا صرف ہمارے غیر مؤثر نظام تعلیم اور بطور خاص ناقص نصاب تعلیم کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک جیسے امریکہ کے ہارورڈ اور اسٹینفورڈ یونیورسٹیوں میں نصاب تعلیم کا 80% حصہ کیس اسٹڈی، 10% حصہ پروجیکٹ ورک، 5% حصہ لیکچرز اور 5% حصہ بقیہ سرگرمیوں کے مختص ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ممکن ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نصاب تعلیم اور تدریس مواد کے سارے ہی اجزاء کو ڈیجیٹلائز کر رکھا ہے اور ساتھ ہی آڈیو ویڈیو کی شکل میں تدریسی مواد ہر وقت طالب علم کی ایک کلک پر دستیاب رہتا ہے۔ 9 اکتوبر 2015 کو زی نیوز نے DNA ٹیسٹ سیریز کے نام سے چل رہے اپنے ایک گراؤنڈ رپورٹ میں بتایا کہ USA نے
प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बस्ते के बोझ से आज़ाद कर रखा है और होमवर्क के साथ साथ सारा काम एक बच्चा डिजिटली अंजाम देता है, जबकि हमारे यहाँ निसाब तालीम का सबसे बड़ा हिस्सा लेक्चर्स पर ही मुश्तमिल होता है और मुश्किल से 10% असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा जाता है। इन सब का इंतजाम अभी तक मैनुअली हो रहा है, जिसकी वजह से असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को भी नकल दर नकल के सहारे किसी तरह सर पर आई बला की तरह टालने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हमारे नौजवानों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें और पैदावारी हुनरमंदियाँ कहाँ से आएंगी? यही वजह है कि 30-30 साल के नौजवान भी फरागत के बाद सरकारी नौकरियों की आस में अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे होते हैं। ये इंतहाई काबिल गौर है कि हमारे मुल्क के नौजवान इतनी उम्र को पहुंचने के बाद भी वालिदैन के खर्च पर मुनहसिर रहते हैं। इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि अगर हम उर्दू के तलबा को बैनुल अक़वामी मेयार पर ला खड़ा करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी सतह की तहक़ीक़ात के ज़रिए फराहम हुए जदीद निज़ाम तालीम और निसाब तालीम की मदद से उनकी तरबियत पर तवज्जो दी जाए। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि जदीद हथियार यानी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उनको मैदान में उतारा जाए। तलबा के लिए किताबें और ऑडियो वीडियो हथियारों के काम भी आते हैं, इसलिए उर्दू की तमाम PDF या यूनिकोड तब्दील करने की पेशकदमी करनी होगी। साथ ही ऑडियो वीडियो मवाद के ज़ख़ीरों को बढ़ाना होगा ताकि उनको किसी भी जगह पर तालीम से जुड़े रहने की तरफ राग़िब किया जा सके। आज उर्दू के तालीमी इदारों का हाल यह है कि वो सिर्फ इस बात की फिक्र करते हैं कि जब फिजिकली कोई तालिब इल्म उनके दरबार में हाजिरी देगा तभी उसको उर्दू की तालीम दी जाएगी, वरना नहीं। बिलाशुबा उर्दू की इब्तदाई तालीम के हुसूल के लिए रेख्ता फाउंडेशन ने आमोजिश के नाम से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। इसी के साथ ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब की सरपरस्ती में भी एक वेबसाइट www.onlineurdulearning.com के नाम से चल रहा है। लेकिन कहने की इजाज़त दीजिए कि ये दोनों ही कोशिशें अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। उर्दू की तालीम और उर्दू जरिए तालीम से दीगर उलूम की डिजिटल तालीम देने की बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म कोशिश मौलाना नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक छोटे से यूट्यूब चैनल IMC मानू के अलावा और कहीं नज़र नहीं आती। इसलिए अहले उर्दू बशमूल हम सब पर लाजिम है कि इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें अगर हम चाहते हैं कि हमारी उर्दू ग्लोबल लिंग्वा फ्रेंका की हैसियत इख्तियार करे और अंग्रेज़ी और दीगर आलमी ज़बानें उर्दू को निगल न लें, तो ज़रूरी है कि हम अपने दिल को ज़रा कुशादा करें। कुछ ना हो सके तो कम अज़ कम क्लासरूम लेक्चर्स को ही यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। इससे न सिर्फ हमारे तलबा दोबारा क्लासरूम की बातों का इंतज़ार कर सकेंगे और उनके इल्म में गहराई आ सकेगी, बल्कि हमारे असातिज़ा भी लेक्चर की पूरी तैयारी करके आएंगे, क्योंकि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी बनाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एहसास था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह है कि टीचिंग प्रोफेशन में आमतौर से वो लोग आते हैं जिनको अपनी पहली पसंद की नौकरी नहीं मिली होती, इसलिए वो आधे अधूरे मन से क्लासरूम आकर किसी तरह अपना फर्ज निभा ले जाने के फिराक में रहते हैं। ऐसे में उर्दू के तलबा को किस तरह की महरूमियों का सामना करना पड़ता है, इसके तसव्वुर से ही उर्दू का मुस्तकबिल तारीख नजर आने लगता है। क्लासरूम लेक्चर्स को अपलोड करने का दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि वो लाखों करोड़ों तलबा जो उर्दू सीखने, पढ़ने और उर्दू शेर व अदब के रुमूज़ से वाकिफ होना चाहते हैं लेकिन फिजिकली उर्दू के तालीमी इदारों में हाजिर नहीं हो पाते, वो भी इस बेबहा इल्म से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हमने पिछली सत्रों में देखा कि हमारे नौजवानों का 90% मोबाइल डाटा सिर्फ इंटरटेनमेंट वीडियोस देखने में सर्फ होता है। ऐसे में अगर हम मुशायरों और सेमिनारों की प्रोसीडिंग के साथ साथ कुछ ना हो तो कम अज़ कम क्लासरूम लेक्चर्स ही अपलोड कर दें तो यकीनन उर्दू के शायकीन की दिली मुराद बर आएगी और उर्दू की तभी उम्र में तोसी मुमकिन हो सकेगी। IIT से फारिग एक नौजवान हरीश अय्यर ने FLINT FLINT के नाम से इसी तरह के एक मोबाइल ऐप बनाकर तालीमी निज़ाम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। साथ ही अपनी पूरी टीम को माली लिहाज से मुस्तहकम भी किया है। क्या उर्दू के लिए इसी तरह की कोशिश हम में से कोई नौजवान नहीं कर सकता? एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर अभी भी डिबेट चल रही है। हालांकि अपनी नाक़िस फ़हम के मुताबिक समझता हूँ कि ये बड़ा ही मज़ाक़ खेज़ है कि आज जबकि हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और वो ज़िंदगी को आसान और दिलचस्प भी बना रहा है, ऐसे में सिर्फ एजुकेशन जैसे कारामद शोबे को ही टेक्नोलॉजी की दस्तर से बाहर रखने की बात हो रही है। हालांकि ये खुश आइंद है कि हुकूमत हिंद की वजारत तरक्की इंसानी वसाइल ने स्वयं के नाम से एक मुस्तकिल कोशिश की संत में शुरू कर दी है। इस स्कीम में उर्दू मज़ामीन की शमूलियत के लिए अहले उर्दू को तवज्जो ज़रूर करनी चाहिए। उर्दू के डिजिटल न होने से हमारी यूनिवर्सिटियों में जो दूसरा सबसे बड़ा मसला पैदा हो रहा है वो ये है कि रिसर्च का मियार बुलंद नहीं हो पा रहा है। अगर उर्दू की सारी किताबें PDF और यूनिकोड वर्जन में दस्तियाब रहें तो किताबों की मकबूलियत में इजाफे के साथ साथ गूगल सर्च की सहूलत होने से साबिक़ा तहक़ीक़ात की तफसीलात भी
एक क्लिक के साथ ही आंखों के सामने होगी। इसकी मदद से एक नया मुहक्किक कम वक्त में और आसानी के साथ अपनी तहक़ीक़ के डिज़ाइन में रद्द-बदल करके उसे मुफीद तक बना सकेगा। इसके अलावा इल्मी सर्फिंग यानी प्लेजरिज्म को पकड़ना भी आसान हो जाएगा। इसलिए भी ज़रूरी है कि एक आम ख्याल ये बनता जा रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाली तहक़ीक़ का मियार बारहा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और सहाफ़ियों की ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट से भी कमतर होता जाता है। इसकी एक बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि उर्दू की किताबों का डिजिटल फॉर्म में न होना है। अगर हम अपनी तहक़ीक़ का मियार बुलंद बनाने में संजीदा है तो लाज़मन हमें नई टेक्नोलॉजी के समरात से इस्तेफ़ादा करते हुए अपने इल्मी ज़ख़ीरे को PDF और यूनिकोड वर्जन में मुंतकिल करना पड़ेगा, वरना किताबें लाइब्रेरियों में मुबसरा होती रहेंगी और हमारी तहक़ीक़ात का दायरा शख्सियात के फ़िक्र व फ़न के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। इससे आगे बढ़कर वक्त से हम आगे होकर समाज के लिए मुफीद तक साबित होने में नाकाम रहेगी। आखिरी पैराग्राफ, इजाज़त दीजिए। इस पूरी तफसील से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि सारी दुनिया में तालीम और ताल्लुम का निज़ाम डिजिटलाइज हो रहा है। ऐसे में अगर उर्दू को बड़े पैमाने पर अवाम में मकबूल और कारआमद बनाए रखना है तो ज़रूरी है कि इसके असासे को डिजिटलाइज करने की रफ्तार को तेज़ तर किया जाए, वरना आलमी ज़बानों के बीच उर्दू को आखिरी सांसें लेते हुए देखने पर हमारी आंखें मजबूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शाहिद हमीद फलाही, जिन्होंने एक डिफरेंट टॉपिक पर बातचीत की और इस वक्त जो उर्दू की जो इस वक्त डिजिटल सूरत हाल है, और जी बहुत अच्छा मकाला था इनका, हम सबको इससे अगले रिसर्च स्कॉलर दिल्ली यूनिवर्सिटी से